So I'm going to start a different batch for basic to advance. तो जो लोग मेरे साथ basic से नहीं जुड़े हैं, you have this opportunity to grab. We are doing Parashara from very zero, and this time I have learned more because this was my first batch. I did mistakes. I have learned from my own mistakes. So this second batch is of course going to be the more refined batch because now I know things which are better. So sorry for the people who attended the first batch, but also thank you to the people who attended the first batch. This made me learn a lot of things. Okay. So I'm going to start with the second batch, and this time there will be no basic and advanced differentiations because I didn't want it to do that now because that was a mistake for the first time. I'll be doing a 0 to hero batch. So we'll be starting from scratch and going to the top, including things which were not in astrology 101, which were not in advanced astrology course. So even if you were part of that course and want to refine your knowledge in a different way and want to have a different approach, because as I told you it's the infinite science, you can join that course. We will be starting it in coming month. I don't know the date yet, but we will be doing that in coming month. Other people who think that they are having a good command on Parashari and now they want to learn Gemini Sutras, मोस्ट वेलकम. विल बी डूइंग जेमिनी सूत्रा साइड बाय साइड. अब ये कोर्स साइड बाय साइड चलेंगे, दोनों ही कोर्सेज होंगे. ऐसा नहीं है कि आप एक होंगे, दोनों ही कोर्सेज होंगे. यू कैन ज्वाइन ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर माइंड. हाउ इज एवरीबॉडी? काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास. सो वोट क्या कहती है? जुपिटर करना है कि D60 करना है? Let me just check the group. So पलड़ा जुपिटर ट्रांजिट का थोड़ा भारी है, तो मैं भी फाइनल वोट जुपिटर ट्रांजिट को दे देता हूँ. We will do Jupiter transit today. So we have to move here. What is happening? Everybody knows what is happening here. Jupiter is going in the Gemini sign. Right? Going क्या मतलब? It's already there in the Gemini sign since 2 days. 15 तारीख रात को जो गुरु हैं वो राशि बदल चुके थे. अब कल राहु देवता एक्वेरियस में आ जाएंगे. सो फ्रॉम एक्वेरियस ही इज गोइंग टू लुक एट द जुपिटर. So for next 1 year, the Jupiter will be in the influence of Rahu, or Rahu will be in the influence of Jupiter. I hope you are getting it. Everybody knows the basics, right? So ये जो गुरु राहु संबंध बन रहा है, इससे दुनिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं? For next 1.5 year we'll be discussing that. आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं? That's also what we are going to discuss. And what you can do and what you cannot do is something also which we can discuss. Okay? What is Jupiter in one word? What is Jupiter? Who is Jupiter? Wisdom. Very good. Jupiter is wisdom. Wait. So, just a second. Let me put the mouse here. So, what is Jupiter in one word? Jupiter is wisdom. Very good. और क्या है? Knowledge. जुपिटर इज गुरु. जुपिटर विजडम और नॉलेज में फर्क क्या है? काजोल जी कहते हैं यू. या सो गुरु इज जुपिटर, राइट? बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विजडम एंड नॉलेज? Knowledge you acquire, and wisdom is already there. Okay, you can say that. So knowledge is not guru. Guru is wisdom. Knowledge is maybe Mercury. आपने कॉपी पढ़ी, किताब पढ़ी, आपको कुछ सीखने को मिल गया, वो नॉलेज है ना. यू गेन सम टेक्निकल नॉलेज, यू गेन सम साइंस नॉलेज, यू गेन सम बुकिश नॉलेज दैट इज कमिंग थ्रू Mercury and not through Jupiter. Okay? So Jupiter is not knowledge. Jupiter is wisdom.
Knowledge is something you invent. Wisdom is something you discover. I hope everybody knows the difference between discover and invent, right? So that's something. Now, Jupiter in one word is Jiva. Jupiter is Jiva, right? But there is another word for Jupiter. That is opportunity. Jupiter is opportunity. So wherever Jupiter is going, the opportunity is going to be there. So if he is going in Gemini, what is Gemini? Gemini is intellect, Gemini is AI, Gemini is social media, Gemini is communication. You will see all of these things expanding, and the opportunity is there for 1 year. So if you are thinking to go into AI, this is the right time. If you are thinking to go into writing, this is the right time. If you are thinking to start online business, this is the right time. If you are thinking to take that online course, this is the right time. If you are thinking to communicate through social media, this is the right time. Why is this the right time? Because Jupiter is the opportunity, and the opportunity is opening in the sign of Gemini. Now, Gemini is the air sign. So all the opportunities related to air will also be there. Maybe air transport business could be going up. So anything related to air is also going to expand. Anything related to Mercury or the third sign is also going to expand. Jupiter is also expansion. Jupiter is also expansion. Now there is very beautiful thing about it. Wherever your Jupiter is going, let's suppose your Jupiter is going in the 12th house. You are going to have opportunity in abroad. Let's suppose you are Cancer ascendant and your moon is in Aries. That is, moon is in the 10th house. Now from the moon, the Jupiter will be transiting in the 3rd house. But from the Lagna, it will be transiting in the 12th house. So the opportunity will be coming by having a short travel to abroad. 3rd from moon is short travel. 12th house is abroad. So if you go for a short travel in abroad, you will be grasping the opportunity. You will be grasping the expansion. What else? You are Jiva. Now this Jiva is going in the 12th house. What is 12th house? 12th house is either abroad, or it's jail, or it's hospital. I'm talking about Cancer ascendants, okay? So not everybody. But not everybody is going to go to the hospital, right? Not everybody is going to go to the jail, right? Who will decide this? I'll tell you who will decide this. But the Jiva is also entering in the 12th house. 12th house is isolation. So maybe this person will be isolated. Maybe this person would enjoy his own company for a while. जीव कहां जा रहा है, आप कहां जा रहे हो, दैट इज व्हाट जुपिटर इज. अब अगर किसी का जीव 4th हाउस में जा रहा है तो आप घर बदल सकते हो, गाड़ी बदल सकते हो, एजुकेशन में एक्सपेंशन कर सकते हो, बिकॉज दैट इज वेयर यू आर गोइंग. You want me to explain this for every house? Okay, I can explain this for every house. So let's just make every house here. Okay. So this is how a rough kundali looks like. जीवा यानी कि गुरु, ये गुरु का साइन होता है जुपिटर. अभी मैं राशि ऐड नहीं कर रहा, राशि पर हम थोड़ा आगे चलकर आते हैं. यदि तो गुरु यहां आ रहा है,
तो आप खुद यहां आ रहे हैं, यानी कि यू विल बी फोकसिंग ऑन योर बॉडी, यू विल बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एक्सपेंशन, यू विल बी फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, यू विल बी फोकसिंग ऑल ओवर ऑन यू. Okay, because this is you. First house is you. आप खुद. If Jupiter is coming here, that means you will be going for finances, you'll be going for money, you'll be going for family, you'll be going for assets. That is where you will be going for. Jupiter यहाँ आ रहा है, you'll be going for short travels, you'll be going for communication, you'll be going for sibling के साथ अच्छे relations. लेकिन राहु देख रहा है तो अभी उस पे विल डू एडिशंस अभी. जस्ट टेकिंग टू द बेसिक्स फॉर यू गाइस. ओके, जुपिटर यहां आ रहा है तो वेयर इज जीवा गोइंग? जीवा इज गोइंग इनटू अ न्यू हाउस, जीवा इज गोइंग इनटू अ न्यू व्हीकल, जीवा इज गोइंग इनटू अ न्यू स्किल सेट, जीवा इज गोइंग इनटू न्यू नॉलेज, जीवा इज गोइंग फॉर सम इमोशनल स्टेबिलिटी. फोर्थ हाउस इज इमोशंस. जीवा इज गोइंग टूवर्ड्स द मदर. So maybe Jiva is also taking some education, fourth house. किसी बच्चे का जा रहा है तो आप कह दो हाँ जी स्कूल ज्वाइन कर लेगा जी, करा दो जी, कोई दिक्कत नहीं जी. There are multiple factors. I was about to say something else, but I thought that's not going to be appropriate for public discussions. But yeah, let it be. So Jupiter fifth में जा रहा है. You might enter into occult sciences. You might give birth to the child, or you might conceive the child. You might start a new hobby. You might get into entertainment field. You somehow suddenly start loving acting. You suddenly start loving some hobby. You suddenly get into astrology, occult sciences, mantra, tantra. Jupiter 6th house में जा रहा है. Jupiter is going towards diseases. Jupiter is going towards debts. You are going towards debts. Take care. You might be misusing your credit card. Don't misuse it. This year is not good for you. I'm not saying it's not good for you, but use your money wisely, okay? What else do we see from the 6th house? You may get a pet. And that's actually a remedy for this. Get a pet. Take responsibility of 6th house. Jupiter is also responsibility. Jupiter is the biggest responsibility, the responsibility of truth. Jupiter 7th में जा रहा है. Jiva is going towards marriage, Jiva is going towards relationship. Here also Jiva is going towards relationship. But that's love and all those kind of relationships. Here it's a long-term commitment. Here it's marriage. Jiva might be going towards marriage. Jiva might be starting a new business. Jiva might be talking to their enemies. Jiva might be confronting their opponents. लेकिन सर जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके लिए फीमेल के लिए फिर गलत होगा ये? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. हम किसी के कैरेक्टर पे थोड़ी कोई कह सकते हैं अगर उनका जुपिटर बड़ा अच्छा है. और ऐसा नहीं होता कि दिस इज नॉट जस्ट लव एंड रोमांस. हाँ तो आपका मैं सिर्फ 7th हाउस की बात तो भी क्या दिक्कत है? यू माइट बी मोर इन्वॉल्व विद योर हस्बैंड. You might be more involved with your husband. You might be, see, Jiva is also Sanjeevani. Remember, Jupiter is also life. Is Jupiter life? Everybody knows about it. Jupiter is oxygen. Jupiter is life. So you might be having a lifeless relation since last 1 year, 2 year, 3 year, and you might be giving life to the relation now. That's also the possibility. Okay? This is also business opportunities. This is also marketing. This is also market. 7th house से जो भी देखते हैं वहां पर जीव जा रहा है. Jiva going in the 8th house. This is bad. Now when the Jiva goes into the 8th house, you might hear a bad news from nears or dears. ठीक है, इसकी रेमेडी मैं लास्ट पर क्या भी बता देता हूं. यहां पर यू शुड बी स्पॉन्सरिंग लास्ट रिचुअल्स टू समबडी. किसी के लास्ट रिचुअल्स में हेल्प कर दीजिए. ठीक है. Jupiter going to the 9th house. Jupiter is going for a long-term commitment. Jupiter is going
for long term vision. Maybe he's going into PhD, maybe he's going into masters, maybe he's going abroad for higher education. Okay, maybe this person is going towards some guru, maybe he's going towards some knowledge, maybe he's now gonna realize the value of his father. He's going towards his luck. अब एक साल उसका लक उसका साथ देने वाला है. But the Rahu is also looking, so consider that, okay? That might cause obstacles. That might not want him to use it well. Jupiter going in the 10th, you are now going to gain reputation. You are now going to, Jiva is going towards expansion of his career. Jiva is now going to make sure that he gets some more respect, gets some more opportunity in his career, at his workspace, in his karma. Okay? Jupiter going towards 11th. Maybe Jupiter is going towards his long-term wishes. He wanted to do something and now is the time to make sure that he does that. Jupiter is going to meet new people. Jupiter is going to meet new people. This is house of people. Large groups. These people might become part of a large group. Alright? What else is 11th house? Close friendships. So the lifeless friendships might come to life again. Especially when the Venus will be transiting in the 4th house. Why? Because it's going to be 8th from Venus. And 8th from Venus is Sanjeevani. Same is the case here. When the Venus will be transiting here, then this lifeless relation will gain. अब मैंने आपको सूत्र बता दिया, कहीं पे भी निकाल लो. किसी की एजुकेशन रुकी पड़ी है, लाइफलेस एजुकेशन है, कब पूरी हो सकती है? जब वीनस यहां ट्रांजिट करेगा. यहां से 8th 4th हाउस बन रहा है. ओके, देयर माइट बी अ लाइफलेस लव or a girlfriend or a boyfriend. Will it be recovered? Can it be recovered? It can be when the Venus is transiting in the 10th house. It's going to be 8th from the Venus. The Venus provides the life. जो संजीवनी है, जो मृत संजीवनी विद्या है, वो शुक्र के पास है. तो मैंने आपको एक सूत्र इसके साथ ऐड कर दिया है, इसको याद रख लीजिएगा. Jupiter going in the 12th house, you might be investing. Jiva is now thinking to invest his money. Jiva is now thinking कि मुझे पैसा कहाँ लगाना चाहिए. लेकिन अब क्या वो इन्वेस्टमेंट सही रहेगी? अब देखो, केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहा होगा, अगर गुरु यहाँ ट्रांजिट कर रहा होगा तो. This is going to be the case of Cancer ascendant. Right? So if the Jupiter will be transiting in the 12th, the Ketu will be transiting in Leo in the 2nd house. So now the money is going away, finances are going away. But now investment is also happening. So it's better to get your money into investments. तो एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं ना, अब उसको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दो. Yes. मतलब मनी जानी है. मनी जानी है तो आप खुद भेज दो. Now where to invest? That's also the question. Where to invest? I'll come there. So Jupiter going 12th house, Jiva is going towards investments. Jiva is going towards abroad. Jiva is going towards isolation. Jiva is going towards unknown lands. Right? Visit some unknown place where you have never been. जहां कभी नहीं गए वहां चले जाओ. And if you go there, you'll see the opportunity waiting for you. There is always the opportunity waiting for you. तो सर हॉस्पिटल भी विजिट करना चाहिए. Yeah, definitely. Admission in hospital. तो सर ये तो 1 साल के लिए है, तो फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा. नहीं, चलो इसका भी मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं. अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मैं इसके क्वेश्चंस नहीं लूंगा. अब एक हाउस से हम कुछ अच्छा भी देखते हैं, कुछ बुरा भी देखते हैं. अच्छा भी देखते हैं, कुछ बुरा भी देखते हैं. अब ट्रांजिट में अच्छा होगा कि बुरा होगा? इन्वेस्टमेंट होगी कि जेल जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा कि अब्रॉड जाएगा?
बीमार पड़ेगा के ओपोनेंट्स पर विजय पाएगा। हर हाउस से कुछ ना कुछ अच्छा भी है, कुछ ना कुछ बुरा भी है। ट्रांजिट का रिजल्ट अच्छा होगा कि बुरा होगा कैसे पता चलेगा? अष्टावक्र स्कोर से। 12th हाउस का अगर देखना है, इसका अष्टावक्र स्कोर देखो और देखो जुपिटर ने कितने नंबर दे रखे हैं। इफ इट इज लेस मार्क्स ऑफ दिस हाउस एंड जुपिटर इज गिविंग नेगेटिव मार्क्स, कम नंबर दे रहा है, तो यहां नेगेटिव घटना घटेगी, पॉजिटिव घटना नहीं घटेगी। समझ में आया? ये बहुत बड़ा सूत्र मैंने आपको 1 मिनट में दे दिया। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आपको पूरा अष्टावक्र सिस्टम यूज करना आ गया है। नहीं लेकिन सर अष्टावक्र कोई करंट का थोड़ी बनाएंगे, वो तो कुंडली का ही बनता है आपकी ना। कुंडली का। हाँ आपकी कुंडली का, हमारी कुंडली का हाँ, जो होगा। अष्टावक्र स्कोर देखो 12th हाउस को कितना मिला है, उसमें जुपिटर ने कितने नंबर दिए हैं। लेकिन अगर उसमें जुपिटर नहीं बैठा है तो नहीं होंगे ना फिर तो। मैं तभी कह रहा था ना, मैं इसका क्वेश्चन नहीं लूंगा क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आया, आपने अभी देखा ही नहीं कभी अष्टावक्र क्या है। एक दिन क्लास में देखा था सर, अब दोबारा देखना पड़ेगा। हर एक प्लैनेट नंबर हम्म। देता है एवरी राशि को। ओके ठीक है। 4 से ऊपर नंबर होने चाहिए। 4 से कम है या 4 भी हैं तो नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। अब अगर जुपिटर यहां ट्रांजिट कर रहा है और नंबर गुरु ने यहां 2 दिए हुए हैं और ओवरऑल अष्टावक्र यहां 15, 16, 18 बन रहा है, तो डेफिनेटली जुपिटर विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ द 12th हाउस। यू विल हैव लॉसेस। 12th हाउस इज ऑल्सो लॉसेस। रादर देन इन्वेस्टमेंट्स यू विल हैव लॉसेस। रादर विजिटिंग अब्रॉड यू माइट विजिट हॉस्पिटल। और अगर यहां पर बाय चांस मार्स ने नंबर जो है वो भी कम दिए हुए हैं, तो जब मार्स का ट्रांजिट होगा तो यू माइट ऑल्सो गो जेल। ठीक है? तो क्या ये हो जो गया? सिस्टम है ना, ये जो मैंने अभी आपको एक सिस्टम अष्टावक्र सिस्टम बताया है, ये तो बहुत बहुत इजी और अननोन वे ऑफ कैलकुलेशन है। पीपल डोंट नो अबाउट इट, बट आई एम गिविंग इट टू यू, सो यूज इट वेल। ठीक है? अब 4th हाउस में ट्रांजिट है, गाड़ी लोगे के घर लोगे? क्वेश्चन आ जाता है, गाड़ी लोगे के घर लोगे? अगर तो शुक्र के नंबर ज्यादा हैं तो गाड़ी लोगे, शनि या मंगल के नंबर ज्यादा हैं तो घर लोगे। शनि के ज्यादा हैं तो बना बनाया घर लोगे, मंगल के ज्यादा हैं तो लैंड लेकर बाद में बनाओगे। हाउ इजी द प्रिडिक्शंस विल बिकम। ठीक है? ये सिस्टम के ऊपर मैंने एक पूरा क्लास रखने का सोचा था। विल डू इट समडे, ऑल्दो जब हम नेक्स्ट कोर्स करेंगे, जेमिनी का कोर्स करेंगे, उसमें वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस अष्टावक्र सिस्टम इन वेरी डिटेल, क्योंकि इसमें कारकाज का बहुत ज़्यादा डीप रोल रहता है। सो दिस इज बेसिक थिंग कि जुपिटर जीव कहाँ जा रहा है और जीव के पास अपॉर्चुनिटी कौन सी है। ठीक है? अब आप अष्टावक्र से देख सकते हो, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी है तो उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, और अगर नेगेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। नाउ इफ वी गो टू द राशि, राशि कौन होती है? बड़े लोगों का सवाल होता है, राशि कौन है जी, मैं कौन सी राशि का हूं? वेयर एवर इज योर मून इज योर राशि। ठीक है? चंद्र से गुरु कहां जा रहे हैं? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, यहां अगर एरीज आ जाएगा और चंद्र यहां है, तो चंद्र से गुरु 3rd जा रहे हैं इन द 12th हाउस। सो यू माइट हैव टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रेवल टू अब्रॉड टू गेट द अपॉर्चुनिटी। नाउ इफ द अष्टावक्र इज नेगेटिव फॉर इट, यू माइट हैव टू गो फॉर शॉर्ट ट्रेवल टू जेल, यू माइट हैव टू गो टू शॉर्ट ट्रेवल टू हॉस्पिटल। ठीक है? अब आपको देखना पड़ेगा कि अष्टावक्र स्कोर इसको कैसे डिटरमाइन कर रहा है। शॉर्ट ट्रेवल तो होगा 12th हाउस में, वो अब्रॉड का होगा, हॉस्पिटल का होगा, जेल का होगा, ये आपको अष्टावक्र स्कोर से फिगर आउट करना पड़ेगा। अब अगर हॉस्पिटल का होगा तो खुद हॉस्पिटल चले जाओ, अगर जेल का होगा तो जेल का खाना खा के आओ। बड़े पंडित बताते हैं सर जेल का खाना खाओ, क्यों बताते हैं? ठीक है? अगर अब्रॉड का नहीं, आइसोलेशन का होगा, अगर आइसोलेशन है, नेगेटिव आइसोलेशन भी हो सकती है। नेगेटिव आइसोलेशन इज लूजिंग योर लव्ड वंस, बिकॉज केतु विल बी हियर इन द हाउस ऑफ कटुंब,
right? So go at a place where you have never been to. Isolate yourself for 1 or 2 days. Close yourself in a room. Easy remedies are there. घर पे किसी को बोल दो मुझे बाहर से ताला लगा के चल जा, जेल हो गई, किसी ने बाहर से ताला लगा दिया, आइसोलेशन हो गई, आपके हाथ में नहीं है बाहर जाना, आप अकेले हो, घर बाहर से लॉक है, कमरा बाहर से लॉक है. इजी रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं. This was one example. Let's suppose Jupiter is here. That means Aries will be here. Now short travel to the 4th house is there. You might get a car or a house at a short travel. आपको घर जो मिलेगा वो शॉर्ट ट्रेवल पे मिलेगा. आपकी एजुकेशन जो है वो थोड़ी शॉर्ट ट्रेवल पर होगी. सर मैं दिल्ली रहता हूं, मेरी गुड़गांव में यूनिवर्सिटी है, ज्वाइन हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी. जाना पड़ेगा शॉर्ट ट्रेवल करके एजुकेशन लेने. सो चंद्र से कहां जा रहा है? अब अगर चंद्र यहां पे है, लेट्स सपोज समबडी इज एरीज, एरीज क्या है, कैंसर, ये ले लो 10 नंबर लगन ले लो. अब 3 नंबर कहां आएगा जी? 11 12 1 2 3. 6th फ्रॉम मून जुपिटर विल बी ट्रांजिटिंग. The problem is there. 6th from moon, Jupiter will create enemies. Jupiter will create debts. मैंने ट्रांजिट के नोट्स दिए हैं आपको, पढ़े सबने? नहीं पढ़े? सुमन जी ने पढ़े होने, सबसे ज्यादा सुमन जी ने मंगे सीखे. Read those transit notes. You'll get to know better. Now the problem here is that Rahu is going to join this Jupiter with his drishti. Okay? What is Rahu? Rahu is also expansion. Expansion in Jupiter. Now Rahu is friend of Gemini. But Rahu is not friend of Jupiter. And Gemini is not friend of Jupiter either. So the Jupiter will be between two enemies. That means the Jiva might face controversies. And you will see the controversies coming for AI, advanced communications as well. People will say boycott AI. In coming year, you'll see that. Controversies will be there, but yet the expansion will be there, and Rahu is Kali Yuga. This is going to change the Yuga. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, युग कैसे चेंज होता है. पता है युग कैसे चेंज होता है? How the world transforms. The world transforms every 30 years with the cycle of Saturn. The way of working changes every 30 years. अभी 2.5 साल रह गए हैं शनि के पाइसेस में. शनि ने कहां जाना है? एरीज में वापस. 2.5 साल के बाद दुनिया का काम करने का तरीका डिफरेंट होगा फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स. और प्रीवियस 27 ईयर्स वॉज अ डिफरेंट वे. उससे प्रीवियस 30 ईयर्स वर अ डिफरेंट वे. इफ यू नोटिस इट, आप चले जाओ आज से 27 साल पीछे. क्या हुआ 27 साल पीछे? इंटरनेट का वर्ल्ड आ गया, दुनिया में काम करने का तरीका चेंज कर दिया, फोन्स आ गए. एवरीथिंग हैपेंड इन लास्ट 27 ईयर्स. Since 1998 के अराउंड, 99 ले लो, when the Saturn entered Aries. 99 तक पिछले 30 साल अलग तरीका था काम करने का. अब 99 से अगले 30 साल अलग तरीका है काम करने का. अब जब दोबारा से Saturn Aries में आएगा, the way of working is going to change for next 30 years. So you guys need to save your careers. If you feel like that you are gonna go old way, old school, there are going to be troubles that you might face. अब ये मैंने आपको वर्ल्डली ट्रांजिट्स बता रहा हूं साथ में कि हम देखते कैसे हैं. अब दुनिया हर 30 साल में चेंज हो जाती है. क्यों चेंज हो जाती है? शनि हर 30 साल में चेंज हो जाता है, काम करने का तरीका हर 30 साल में चेंज हो जाता है. ठीक है, समझ में लग गया? अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं. Let's take other planets.
हर 12 साल में गुरु चेंज होता है, हर 12 साल में जनरेशन चेंज होती है, जीव चेंज होता है। जो मैं हूं, जो मेरे से 12 साल छोटे होंगे, उनका और मेरा सोच कभी नहीं मिल सकता। मेरा सोचने का तरीका, उनका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। क्यों होगा? मैं अलग जीव हूं, मैं अलग टाइप का जीव हूं। 12 साल एक टाइप के जीव पैदा होते हैं, अगले 12 साल अलग टाइप के जीव पैदा होते हैं। अब आप उसको अल्फा कह दो, बेटा कह दो, मिलेनियंस कह दो, जो मर्जी, वो आपकी टर्म्स हैं, आप कहो, मैं नहीं कहूंगा, आप कहो। हर 18 साल में राहु और केतु चेंज होते हैं। हाँ जी, क्या है जी राहु केतु? व्हाट इज राहु केतु? shadow, Trade, give and take. This is addition, this is subtraction. Giving and taking methods will change every 18 years. नोट चलते थे, सोने में ट्रेड होता था, चांदी में होता था, निकल में होता था, बार्टर सिस्टम था, आज क्रिप्टो में हो रहा है। हर 18 साल में वे ऑफ गिविंग एंड टेकिंग विल चेंज, वे ऑफ एक्सचेंजिंग विल चेंज, एंड दीज आर ओनली मेजर प्लैनेट्स। लास्ट इज 30 years ऑफ सैटर्न। तो यही 3 मेजर प्लैनेट्स हैं जो लंबा टाइम रहते हैं, और यही 3 जो प्लैनेट्स हैं ये आपको वर्ल्डली मैटर्स के ऊपर कई चीज़ें बताकर जाते हैं। ठीक है, सो अब जब वापस से केतु और राहु चेंज होंगे, वापस सेम साइकिल में पहुंचेंगे, अब ट्रेडिंग साइकिल विल बी टोटली डिफरेंट, अलग तरीके से ट्रेड हो रहा होगा। डू योर ओन रिसर्च, गो बैक इन टू द पास्ट टीचेज अस सो मच। ओके, चलो एक चीज और बताता हूं। एनीबडी नोज अबाउट सोलर साइकिल? व्हाट इज सोलर साइकिल? I think every 100 or 300 years it changes. Cycle, like brings it to zero and the clock starts back again. सोलर साइकिल होता Whatever है has happened will, सन के ऊपर, will happen in the similar way. सन के ऊपर एक्सप्लोजन्स होती हैं एवरी 11 years। मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है। हर 11 साल के बाद सन के ऊपर एक्सप्लोजन्स होती हैं। और ज्योतिष क्या है? एक चीज का दूसरी चीज पर प्रभाव। कुछ भी सूर्य को होगा वो अर्थ पर इफेक्ट आएगा। आज सूर्य की लाइट बंद हो जाए, अर्थ खत्म हो जाएगी। आज सूर्य की लाइट डबल हो जाए तो भी अर्थ खत्म हो जाएगी। सो एनीथिंग हैपन्स टू द सन इज डायरेक्टली इफेक्टिंग अस। सो एवरी 11 years some major event on earth is happening. Go research. Take one thing that happened. कोई एक मेजर चीज ले लो, कोविड ले लो। चलो, जब कोविड आया उससे 11 साल पीछे क्या आया चेक करना, उससे 11 साल पीछे क्या आया चेक करना। यू विल फाइंड वॉर्स, यू विल फाइंड कंट्रीज गेटिंग डिफरेंसेस, यू विल फाइंड नेचुरल डिजास्टर्स, यू विल फाइंड नेचुरल डिजीजेस कमिंग। कोविड कौन से साल में आया? 2020। 11 years कब होंगे? 31। वेट फॉर 2031। ठीक है, सो दैट्स हाउ द ट्रांजिट इज वर्किंग। ट्रांजिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। देयर आर पीपल हु बिलीव इन अ फ्लैट अर्थ, उनके लिए नहीं है ये सब। ठीक है ना? So, what is happening here is Jupiter is entering Gemini, which is ruled by Mercury. It is dual nature sign. Now the Jiva is in duality. This is the year of confusion. Again, example of Cancer ascendant. If it is in the 12th house, this person will be confused. बाहर जाऊं कि ना जाऊं, इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। 4th हाउस में जा रहा है, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। 3rd हाउस में जा रहा है, क्लास ज्वाइन करूं कि ना करूं। 5th हाउस में जा रहा है, बेबी प्लान करूं कि ना करूं। 7th में जा रहा है, शादी करूं कि ना करूं। यू विल बी सो मच कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ मर्करी एंड द ड्यूअलिटी ऑफ दिस साइन एंड द प्रभाव ऑफ राहु। द कंफ्यूजन टू द जीवा इज कमिंग. You might not be able to use this transit well.
राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी, ये ड्यूअलिटी की रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब होगा क्या, वर्ल्डली क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपैंड होगी। एआई, डिजिटल एजुकेशन, स्पेस टेक, बायोटेक, ग्रेट रिजल्ट्स, ब्रेकथ्रूज वाया अनकन्वेंशनल वेज, स्पेस, मिलिट्री, डिबेट्स आएंगे, एथिक डिबेट्स आएंगे, एथिकल डिबेट्स, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एआई शुड नॉट टेक ओवर दिस, यू शुड नॉट डू दिस, कंट्रोवर्सीज आएंगी। ओके, ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज इट इज द एयर साइन, but Rahu will indicate black market increase, cyber crimes increase, data privacy breaches, and AI powered financial frauds. Be aware of it. Rahu will make it happen. Remember, Gemini is also your bank accounts. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, मीडिया एंड एजुकेशन में क्या हो सकता है, राहु क्या करेगा, मिस इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, फेक न्यूज़ दिखेंगी आपको। सो बी अवेयर ऑफ, डोंट बिलीव इन एवरीथिंग। इफ न्यूज इज फेक, थिंक अबाउट हिस्ट्री। इफ न्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड, द हिस्ट्री कुड हैव लॉट ऑफ थिंग्स। कहते हैं इतिहास हमेशा विजय श्री के पक्ष में लिखा जाता है, जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, तो वो कुछ भी लिख सकता है। जैसे, चलो आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, माइट गो ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। ठीक है, हाँ जी, यूथ क्यों मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्यों आएंगे जी बताओ। जेमिनी इज यूथ, राहु इज creating distortion to the youth. तो take care of youth and they will see a lot of cyber dependency. मैं उस दिन एक रील देख रहा था, बड़ी डेंजरस सी लगी मेरे को, और मेरे को बड़ा सही लगा। जैसे वो if you go in US और Canada, they'll ask you कि फटाफट एक बाइट दे दो, मतलब थोड़ा सा खाना दे दो। जो उनका ना मांगने का तरीका बड़ा अजीब होता है, जो भिखारी लोग होते हैं ना वहाँ पे, कैन आई बोरो दिस प्लीज, कैन आई हैव दिस प्लीज। तो वो एक रील थी, उसमें वो कहता, कैन आई बोरो योर फोन फॉर क्विक स्क्रॉलिंग, आई एम सो डिपेंडेंट ऑन द स्क्रॉलिंग हैबिट, कैन आई प्लीज बोरो योर फोन फॉर 1 second 2 seconds, ओके ओके ओके, आई डिड क्विक स्क्रॉलिंग, थैंक यू सो मच। ही वॉज सो मच एडिक्टेड टू स्क्रॉलिंग। एंड यू विल सी डी एडिक्शन ऑफ फोन्स is very necessary for coming year. Otherwise, you'll have troubles, especially for the youth. Okay? Rahu in Aquarius. Now, what is Aquarius? अब मैं साथ में बता रहा हूँ. Aquarius is large groups, social formations. So you will see rebellions happening or social reformations happening, which are actually unconventional. The countries might be together or have differences at a social level, and you'll see that this wasn't possible. New age politicians will be there, new political ideas will be there. And see, Ketu in Leo, old governments might fall down. किंग का नुकसान हो रहा है, किंग को तो केतु आ गया ना बेचारा लेकिन लार्ज ग्रुप्स को राहु एक्सपैंड कर रहा है। राहु कहता है ऑपोजिशन को पावर दो, तो ऑपोजिशन पावर में आ रही है और राजा पावरलेस हो रहा है। इट्स ऑल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड वंस यू नो इट, you'll be like, this was so easy. Let's see from the जन्म राशि। एरीज से थर्ड जा रहा है, आपको इस टाइम पर इनिशिएटिव, करेजियस, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट देगा। एस्पेक्ट विद राहु में नेगेटिव चीजें क्या हो रही हैं? यू विल बी हैविंग पोटेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल फेम, या आपको
कोई ना कोई प्रोपेगेंडा में फंसा दिया जाएगा। इससे बेटर है कि आप खुद कोई ना कोई प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर लो। एंड यू नीड टू कंट्रोल योर स्पीच, यू नीड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। For Aries people. For Taurus, you'll be seeing financial gains. Why? Because it is going second from itself. It is going second from the moon. You will be seeing family harmony, but the problem will be deceptive family ties. Income increase hogi. For Gemini, it is the time for new identity, time for personal growth, but ego can be there. Spiritual confusion can be there, and at this time you need to be humble. For Cancer people, foreign travel, 12th from itself, right? 12th from the moon, foreign travel open हो रहा है, spirituality open हो रही है, isolation open हो रही है। अब मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट आपको अब खुद समझना है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आई होप सारे समझदार हैं यहाँ पे। फॉरेन रिलोकेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू मिसफॉर्च्यून, 12th, सडन खर्चा पड़ने वाला, पैसा सेव कर लो। लियो पीपल, 11th गेन्स, सोशल सपोर्ट, एल्डर सिबलिंग से हेल्प मिलेगी या एल्डर सिबलिंग को हेल्प करना पड़ेगा, अष्टावक्र स्कोर डिसाइड करेगा। अगर तो कम है, यू विल हैव टू हेल्प योर एल्डर सिबलिंग। अगर ज्यादा है तो यू विल गेट हेल्प फ्रॉम हिम। कम है, सोशल सर्विस शुरू कर दो, सोशल सपोर्ट शुरू कर दो, बिकम अ सोशल वर्कर। अपाहिज आश्रम जाके उनके कपड़े धो के आ जाया करो। अब कपड़े ही क्यों बोला मैंने, जेमिनी साइन। और धोना ही क्यों बोला मैंने, प्रेस भी तो कर सकते थे। थिंक ओवर इट, क्यों बोला। Water, Jupiter. Jupiter is not water. Who said Jupiter is water? Jupiter isn't water. Think on it, you'll get to know. But अगर देखा जाए तो सर लाइफ स्टार्ट्स लाइक पानी से स्टार्ट हुई है, तो फिर हम कंसीडर नहीं कर सकते वाटर। आपका दिल है, आप कर लो। जो मर्जी करो, टेंशन नहीं लेनी नहीं, ठीक है। अब सडन राइज बाय टेक और पॉलिटिक्स इज देयर, बट बी वेयर ऑफ फॉल्स अलायंसेस। यहाँ पे मेरे को कोई साउंड आ रही है जो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, पर चलो लेट इट बी। क्यों आ रही है, लेट्स सी क्यों आ रही है। सबको पता होना चाहिए क्यों आ रही है, विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट कहां पे था मैं, लियो हो गया, हाँ जी। वर्गो, करियर एक्सपेंशन, 10th फ्रॉम द मून। करियर एक्सपेंशन विल बी देयर, न्यू रोल्स विल बी असाइंड, पब्लिक अटेंशन विल बी गेटिंग, बट रिमेंबर डू नॉट गेट इनटू ड्यूअल कॉन्फ्लिक्ट्स। दो नाव में पैर मत रखना। नई जॉब लेने के चक्कर में पुरानी मत छोड़ देना। हर पक्की देख के कच्ची नहीं टाई दी, ठीक है ना। मकान लैन दे चक्कर अपनी झुग्गी ना टालियो, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिब्रा, 9th, फॉर्च्यून टाइम, हायर नॉलेज, गुरु ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ग्रुप्स में जा सकते हो आप। यू माइट गो टू अ टेम्पल वेयर यू ऑलवेज वांटेड टू गो, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर, पॉसिबल कल्ट रिस्क्स। स्कॉर्पियो, 8th, research, occult, hidden truths, sudden transformation, but beware of scandals, especially if your Venus is bad for males. धनु राशि, 7th, पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस ओपन हो रहा है, रिलेशन विद फॉरेनर्स, बट नेगेटिव थिंग इज यू माइट गेट नॉन ट्रेडिशनल पार्टनर्स. If it's a female chart, you'll spoil your Mars if you get into it. If it's a male chart, you'll spoil your Venus if you get into it. Capricorn, 6th, legal matters, service, enemies. Remember, 6th house को अच्छा करना है तो आपको selfless सर्विस किसी को प्रोवाइड करनी है. मंदिर के बाहर जूते साफ कर दो, जूता घर में जिम्मेदारी ले लो. सर्विस आई एम गिविंग इट सेल्फलेस सर्विस फॉर माई सेल्फ, क्या दिक्कत है, दे सकते हो ना. लेकिन यहां पर वर्क प्लेस में मैनिपुलेशंस हो सकती हैं एंड यू माइट हैव टू सी द फेस ऑफ कोर्ट.
तो चले जाओ ना किसी दिन कचहरी जाके चाह पी के आओ, किसी वकील नु मिल के आओ। एक्वेरियस, फिफ्थ, इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम क्या आएगी? एक्सट्रीमिज्म इन यूथ विल बी देयर, आइडियोलॉजिकल ज्यादा हो जाओगे, आपकी आइडियोलॉजीज सेट होंगी। चलो ये भी बता देता हूं, हर 12 साल में आइडियोलॉजीज सेट होती हैं। जिन चीजों में लोग 12 साल पहले भरोसा करते थे, आज उन चीजों में नहीं करते। एक्चुअली 18 में भी होती हैं। राहु इज अ ट्रू रीजन टू सेट द आइडियोलॉजीज, बिकॉज राहु क्रिएट्स इल्यूजन एवरी 18 ईयर्स। नहीं, ऐसे तो ये तो गलत है। एंड दैट्स वाई व्हेन द आइडियोलॉजीज चेंज, योर ट्रेडिंग सिस्टम चेंज। Pisces, fourth, home, vehicle, inner peace. Property through unconventional mean is also there, but family instability भी हो सकती है अगर नेगेटिव हो गया तो। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जुपिटर फील्स अनकंफर्टेबल इन दिस साइन, सो बी अवेयर ऑफ ओवर इंटेलेक्चुअलाइजिंग। डू नॉट over talk with people. Do not debate with people on spiritual area, on knowledge area. Whatever you know, keep it to yourself. This is not the right time to debate over some social thing or on some spiritual thing. Not a right time. Tell them you are right. Remember this, tell them you are right. And trust me, when you tell that you are right, the other person start feeling that they are wrong. And that's the way of Rahu. Okay? Rahu will be having fifth aspect, that is good for innovation but bad for blind optimism. अब याद रखना, ये ambition through illusion है। आपको लगेगा कि आपने बड़ा ही कुछ कर लिया। You will live in future. You will not live in present. ये वही हिसाब हो गया। एक आदमी को किसी ने पूछा, वो मछली पकड़ रहा था, उसको कहा तूने कितनी मछली पकड़ी? तो उसने कहा एक अभी जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद 2 और पकड़ूंगा तो टोटल 3 हो जाएंगी। पकड़ी अभी एक भी नहीं है। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड है, वो ऐसे ही जीता है। आप भी ऐसे ही जीते हो। आपको आज कोई घर लेना होगा तो आप सोचोगे 1 लाख इधर से आ जाएगा, 5 लाख का सोना बेच दूंगा, यहां से शेयर बेच दूंगा, ये घर हो जाएगा, घर आ जाएगा। किया अभी कुछ भी नहीं है। सो डोंट लिव इन दैट इल्यूजन। दिस राहु विल मेक यू लिव इन इल्यूजन। ठीक है, तो एक मछली जिसको पकड़ रहे हो, इसके बाद 2 और पकड़ोगे तो टोटल 3 हो जाएंगी। ऐसा सोचते रहोगे तो कभी भी नहीं होंगी। अब यहां पर जुपिटर 3 नक्षत्रा से गुजरेगा, मृगशिरा से, आर्द्रा से और पुनर्वसु से। आर्द्रा विल बी द period of turbulence, storms and chaos. पुनर्वसु will be the time of rebuilding the things. अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर दोबारा ये नवतारा के अकॉर्डिंग जाएगा। इसमें आपको नक्षत्रास बहुत स्ट्रांगली आने चाहिए। तो अगर मैं बताऊँगा तो आपके सवाल पे सवाल आ जाएंगे जो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज देन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ठीक है, बट रिमेंबर इसमें पुनर्वसु के तरह एक चीज़ और है, रेट्रोग्रेशन। अब जुपिटर रेट्रो बड़ी कॉमन चीज है, अभी भी आई गेस जुपिटर रेट्रो ही है ना। जुपिटर आते ही रेट्रो हो गया है। whenever Jupiter gets retrograde, he is bringing back the opportunity to you. He is giving the chance, he is giving you re-chance to rethink over some decisions. अभी भी मौका है, दोबारा देख ले, दोबारा सोच ले। तूने अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, दोबारा देख ले। और वो अपॉर्चुनिटी आपने कहां की मिस की है? उससे बिल्कुल पिछले घर की। टॉरस, wherever is Taurus, you might have missed the opportunity for it. Now when the Jupiter has entered Gemini, it is giving you a chance to rethink about a thing related to Taurus. Now there could be Mars in Taurus for female chart.
He is giving you a chance to reconsider that guy for making your husband. Or Venus for male chart. He's giving you opportunity to rethink about that woman again. And you can do that as a nakshatra as well. नक्षत्रा से भी कर सकते हो. पुनर्वसु में है और रेट्रोग्रेड हो गया तो आर्द्रा के रिलेटेड आपको क्लिनजिंग के रिलेटेड अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल रही है. ही इज गिविंग यू अ चांस टू रीक्लिंज योरसेल्फ, व्हिच इज आर्द्रा. And if it is getting retrograde in Ardra, he is giving you an opportunity to rethink about Mrigashira. That is chasing something. या कह लो दूर के ढोल सुहावने. आपको मौका दे रहा, दोबारा सोच ले भाई, ये इल्यूजन है नहीं है, ये मृग तृष्णा है. तूने डिसीजन तो ले लिया है लेकिन ये डील कैंसिल कर दे. ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं. अभी तो लॉस हो रहा है 2-4 हज़ार का, बाद में लॉस होगा 5-6 लाख का. जुपिटर विल मेक यू रीथिंक ओवर इट. स्पिरिचुअल कॉशन, दिस इज नॉट द टाइम फॉर ब्लाइंड फेथ. डू नॉट हैव ब्लाइंड फेथ. रादर इट्स द ब्लेंड ऑफ विवेका एंड जनना. सो आपको अपने आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. नाउ मेंटल प्योरिटी में क्या है? जेमिनी इज रूलिंग द मनस. जेमिनी इज रूलिंग द मनस, दैट इज माइंड. You need to have clarity in thinking. How will you have the clarity in thinking? By doing mantra japa. Recite mantras. You will have clarity in your mind. And Jupiter in the Manas, your mind has to be spiritual. Your mind has to be related to Jupiter. That is Satvik. Do your karma. Don't have your eyes on the fruit. बाय प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है. भगवान कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. फल मिलना ना मिलना मुझ पर छोड़ दे. राइट? रेमेडीज सबके लिए बृहस्पति का मंत्र जरूर जाप करो. All signs. Use Mercury remedies if you feel like the Jupiter is in discomfort. And avoid arrogance in speech, especially during the Ardra phase. Remember, the Jivas will be crying in the Ardra phase because the Jiva himself is crying. Ardra is crying. But remember, crying is never for negative thing. Crying is actually purifying you. You cry and you feel really good after it. Right? So crying is not a bad thing. कमजोर है वो इंसान जो रो नहीं सकता. Only strong people cry. And crying makes you stronger and stronger because crying brings you peace, purification. You get rid of that particular thing. हमारे गुरु कहते हैं किसी चीज के लिए रोना है, रो, खूब रो, लेकिन एक बार इतना रो लो कि उसके बाद वो चीज आपके माइंड से प्योरीफाई हो जानी चाहिए. उसके बाद वो चीज निकल जानी चाहिए. लेकिन एक बार रो लो जितना रोना, कोई दिक्कत नहीं, रोने में क्या गलत है. बट आफ्टर इट यू शुड बी प्योरिफाइड. सो दैट वाज ऑल अबाउट द जुपिटर्स ट्रांजिट. एंड बाकी पर्सनलाइज्ड रहेगा हर किसी के लिए, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं. बट आई होप दिस वॉज अ टोटली न्यू अप्रोच टू द ट्रांजिट फॉर एवरीबडी एंड यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू माइट हैव नेवर थॉट अबाउट. हाँ जी सुमन जी. सर एक तो ये कि बाकी सभी प्लैनेट्स का ट्रांजिट जो होता है वो भी हम अष्टवक्र से वैसे ही देख सकते हैं. देख सकते हो अगर देखना चाहो तो. इट्स ऑल सर, ऑन अभी योर भी- माइंड. मैंने कहा समझदार को इशारा काफी है. मैं सर, किसी आप चीज को बोल- एक चीज पर इम्प्लीमेंट, अब आप जब स्कूल में जाते थे तो आपको बताया जाता था 2+2, ये प्लस के साइन का मतलब होता है ऐड करना. अब 2+2 ही स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन जब पेपर देने जाते थे तो आंसर क्वेश्चन आता था 2+8.
अब आप ये तो नहीं कह सकते हो कि आपने 2+8 तो पढ़ाया ही नहीं मैम, या सर आपने 2+8 नहीं पढ़ाया था, आपने तो 2+2 पढ़ाया था। एक्चुअल में मैंने आपको यहाँ प्लस बता दिया, मैंने आपको तरीका बता दिया, सूत्र बता दिया। अब आप अष्टावक्र को कहीं भी यूज करो। सर एक चीज और, जैसे अभी आप बताए ना हर हाउस में जुपिटर का बताया, आपने कहा था मैं अभी राहु का एस्पेक्ट इसमें ऐड करूंगा, तो वो कैसे रहेगा सर? जैसे सेकंड हाउस में इनकेस आया जुपिटर, तो उसमें तो मनी आपकी वेल्थ बढ़ती है, तो राहु का इम्पैक्ट होगा तो क्या ग्रोथ और मल्टीप्लाई होगी या कुछ गलत और? तरीके से अनकन्वेंशनल मीन से कमाओगे तो और मल्टीप्लाई हो जाएगी। झटके की वेल्थ, एक डील कराई 5 करोड़ आ गया। अब वही डील में 5 करोड़ जा भी सकता है। देखो अष्टावक्र क्या कहता है। सर अगर मून पे जुपिटर आया और साथ में राहु का एस्पेक्ट भी आ रहा है तो क्या इफेक्ट रहेगा? फिर गज केसरी योग नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, भंग हो गया। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा? नेगेटिव नहीं रहेगा लेकिन पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव भी नहीं रहेगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट बैच फॉर बेसिक टू एडवांस। तो जो लोग मेरे साथ बेसिक से नहीं जुड़े हैं, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। We are doing Parashara from very zero, and this time I have learned more because this was my first batch. I did mistakes. I have learned from my own mistakes. So this second batch is of course going to be the more refined batch because now I know things which are better. So sorry for the people who attended the first batch, but also thank you to the people who attended the first batch. This made me learn a lot of things. Okay. So I'm going to start with the second batch, and this time there will be no basic and advanced differentiations because I didn't want it to do that now because that was a mistake for the first time. I'll be doing a 0 to hero batch. So we'll be starting from scratch and going to the top, including things which were not in astrology 101, which were not in advanced astrology course. So even if you were part of that course and want to refine your knowledge in a different way and want to have a different approach, because as I told you it's the infinite science, you can join that course. We will be starting it in coming month. I don't know the date yet, but we will be doing that in coming month. Other people who think that they are having a good command on Parashari and now they want to learn Gemini Sutras, मोस्ट वेलकम। विल बी डूइंग जेमिनी सूत्रा साइड बाय साइड। अब ये कोर्स साइड बाय साइड चलेंगे, दोनों ही कोर्सेज होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक होंगे, दोनों ही कोर्सेज होंगे। यू कैन ज्वाइन ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर माइंड सेट। तो अगेन आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द कर्मा एंड नॉट ऑन द फ्रूट एज पर भगवत गीता। तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। आई विल बी डूइंग इट, चाहे मुझे कैसा भी करना पड़े, बट आई विल बी डूइंग दिस। ठीक है। तो जेमिनी में विल बी गोइंग इन द डेप्थ ऑफ जेमिनी सूत्रास विच आर नॉट डिस्कस्ड एवर येट, or maybe they were discussed by some really intense gurus but they were never went public. And ये जो मैंने अभी आपको अष्टावक्र का एक पॉइंट बताया है, this is also coming from the Gemini Sutras. Okay? Are you going to hold the Gemini class during like Saturday, Sunday? I have no idea, but this will be 5 to 6 days a week. We will be involved into it. If we do both courses, we'll be involved into this for 5 to 6 days. 1 day break, 6 days work. ठीक है। हो सकता है सुबह शाम बैच चले, हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक क्लास चले, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक क्लास चले। तो वो वी विल मैनेज अकॉर्डिंग टू एवरीबडी। इफ़ यू गाइज आर इनटू इट तो वो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। बट हाँ, दिस इज़ अ ग्रेट चांस, ग्रेट मौका है। आप अगर करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने एडवांस की या तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स देखी हैं बेसिक की या एडवांस की, या उन्होंने वो अभी किया ही नहीं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू। ओके, चलो एंजॉय करो।